Welcome back students. This is our second lecture from chapter number 2, support and movement, and in this lecture we are going to emphasize on secondary growth. Before going towards secondary growth, you need to understand about meristems. Meristems are those part or those tissues in the plants which are capable of dividing throughout the life of the plant, as they are totipotent. They can divide, reproduce different tissues and capable of dividing throughout the life of the plant and they produce new tissues, new cells. There are two types of meristem in the plant, apical meristem and lateral meristem. Apical meristems are capable of producing tissues like parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, while lateral meristems are capable of producing new vascular tissues like xylem and phloem, secondary xylem and secondary phloem, primary xylem and primary phloem. There are the positions of apical and lateral meristem. Their names have indicated itself. Apical meristem is present on the apices of root tip, on the apices of root and shoot. You can say root tip or shoot tip. While lateral meristems are present in the plant laterally. Laterally matlab horizontally in the width of the plant. And how it is situated in the width of the plant? It is present in between the bundles of xylem and phloem. The plant is standing tall like this, and the bundles, or you can say xylem and phloem tissues, are traveling along the length of the plant. In between this length, along with this length, at one side xylem is present and on the other side phloem is present. They have arranged themselves in circular ways. So in between this बंडल अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करें, अगर हम इसको सपोजली अगर इस टाइम हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें, तो इन बिटवीन इट आपको यहाँ पे रीजन में सेंटर में यहाँ पे आपको एक टिश्यू की लेयर नज़र आएगी जिसे हम कहते हैं कैम्बियम. ये लेटरल मेरिस्टेम है. ये वो मेरिस्टेम है जो कि प्लांट में हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है और डिवाइड करने की सलाहियत रखती है अपने आप को फ्लोएम में भी और जाइलम में भी, यानी it can produce new tissues of xylem and phloem. So this is lateral meristem. इसको हम diagrammatically ऐसे understand कर सकते हैं कि this is a transverse section, longitudinal section of stem. When you can see here a vascular bundle. Vascular bundle किस तरीके से अरेंज होता है? एक साइड पे phloem और दूसरे साइड पे xylem. जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो लेयर प्रेजेंट है इसे हम कह रहे हैं कैम्बियम. जब ये डिवाइड होती है ऊपर की साइड पे तो हम कह रहे हैं फ्लोएम बन रहा है और नीचे की साइड पे तो जाइलम बन रहा है. यू कैन अपसाइड डाउन इट, दैट इज टोटली अप टू यू कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे प्रिंट हुई हुई है और हाउ यू ड्रॉ इट. बट एट वन साइड इट प्रोड्यूसेस जाइलम एंड अदर साइड इट प्रोड्यूसेस द टिश्यूज ऑफ फ्लोएम. और जब यही कैम्बियम थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहती है, हमने कहा क्योंकि ये मेरिस्टेम है, जब यही कैम्बियम नए टिश्यूज बनाएगी, नए जाइलम बनाएगी और नए फ्लोएम बनाएगी, तो इस अमल को हम कहते हैं कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेकेंडरी ग्रोथ इज व्हेन लेटरल मेरिस्टेम एक्टिवेट्स इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज ऑफ जाइलम एंड न्यू टिश्यूज ऑफ फ्लोएम. नाउ in which type of plants this secondary growth appears? Obviously it is present in vascular plants. And in which vascular plants? In angiosperm and in gymnosperm. It appears in all gymnosperm, in all conifers and pine trees, in all gymnosperms. While it appears in angiosperm, it appears only in dicot plants. Dicotyledon plants, you must have understood what dicotyledons are, what dicots are or what dicotyledon plants are. Dicot plants are those plants which जिनके seeds have two cotyledons. Two cotyledons जिनके seeds में होंगे, those are dicots, and there are many other identifying patterns as well. But this is not the emphasis here. This is the today we are going to emphasize on secondary growth, not on the types of or on the understanding of monocot or dicot, as this is the topic of very lower classes. Vascular cambium present होती है in between the vascular bundle. Now हम बात कर रहे हैं कि cambium कितने types की है. So the cambium is also present in between the vascular bundle, and sometimes it is also present in between the cortical region. Cortical region plant का जहाँ पे cortex के tissues हैं, beneath the region beneath the epidermis is called as cortical region, or somewhere it is also termed as hypodermis. dermis के नीचे वाला region
डर्मा यानी आउटर लेयर के नीचे वाला रीजन हाइपोडर्मस, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स। तो इस रीजन में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल कैम्बियम, ठीक है। और जो कैम्बियम आपकी प्रेजेंट होती है इन द रीजन ऑफ और इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। ये दोनों कैम्बियम्स अपने आप को डिवाइड करती हैं और नए टिश्यूज बनाती हैं। अरेंजमेंट किस तरीके से होती है इन टिश्यूज़ की, या किस तरीके से एक वेस्कुलर बंडल अपने आप को एक्सपेंड करता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब आप किसी बहुत पुराने दरख्त को देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कितना ये बड़ा दरख्त है और इसका डायमीटर कितना ज़्यादा है, तो इतना बड़ा डायमीटर प्लांट का कैसे बढ़ जाता है। दैट इज़ द रीज़न, सेकेंडरी ग्रोथ इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट फैक्ट कि किस तरीके से एक दरख्त की विड्थ इतनी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें आप अक्सर आप नेट के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं या नए नए ट्रीज़ आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न और इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने दरख्त मौजूद हैं। तो आपको उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, उनका स्टेम डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो टिश्यूज़ अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं ये हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर कैम्बियम को हम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल भी कहते हैं। देयर आर मल्टीपल नेम्स दैट यू हैव टू लर्न और दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कॉर्क कैम्बियम, इसे हम फेलोजिन भी कहते हैं। नीचे जो लिखा है वो अभी आपको आगे समझाते हैं। फर्स्ट जब हमने इसके टीएस को लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन को लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपने कट करके देखा इसका स्टेम का या रूट का, तो आपको नजर आएंगे कुछ इस तरीके से टिश्यूज़ की अरेंजमेंट। ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी ग्रोथ को। ये वो डायग्राम नहीं है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई हुई है, तो उसके अंदर फिर आपको इतनी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन टिश्यूज़ की नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है तब कैसे नज़र आएंगे वेस्कुलर बंडल, ये वो है। और ये वो इमेज है जो आपको बता रही है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई हुई तो बस एक कैम्बियम की लेयर है और जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल इस तरीके से हैं। एक बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं। यहाँ पर ये जो वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, पहले रीजन्स देख लेते हैं कि पहले एपिडर्मस है, ये जो रीजन है ये आपका कहला रहा है कॉर्टिकल रीजन। उसके बाद आपके पास शुरू हो रहे हैं स्टील का रीजन। स्टील वो रीजन जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स ने अपने आप को एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज किया हो। सेंट्रल रीजन जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं स्टील, STELE, स्टील। ये है आपकी वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगी। जब ये डिवाइड करना शुरू करेगी तो क्या बनाना शुरू करेगी, इस साइड पे इसने बनाए हैं अपने सेकेंडरी फ्लोएम एंड ऑन द अदर साइड इसने बनाया है अपना प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम। यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम बन रहे हैं और अंदर की साइड पे बन रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम। एंड ऑन दिस रीजन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये प्राइमरी जाइलम है, ये डिवाइड हुई है प्राइमरी जाइलम, और बाहरी साइड पे बने हैं सेकेंडरी जाइलम, राइट। दिस रीजन इज सेकेंडरी जाइलम। ये पूरे का पूरा रीजन जाइलम के टिश्यूज से फिल्ड है जिन्हें हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम है। और ये जो पुराने टिश्यूज हैं जिन्हें हम कह रहे हैं प्राइमरी जाइलम, ये अंदर की साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये रीजन जो कि ब्लू से मेंशन्ड है ये सेकेंडरी फ्लोएम, और ये जो ब्लैक आपको बाहर की साइड पर डॉट्स नजर आ रहे हैं ये है आपका प्राइमरी फ्लोएम। ये कॉर्टिकल रीजन। जब ये कॉर्टिकल रीजन के अंदर भी आप एक लाइन देख रहे हैं ब्लैक, ये ब्लैक लाइन, इसको मैंने थोड़ा और यहाँ पे थिकन कर दिया है सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जब ये जो कॉर्टिकल रीजन के अंदर ये जो कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है जिसे हम फेलोजिन भी कहते हैं, अब इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि जब अलॉन्ग एज द टाइम गोज और वेस्कुलर बंडल अपनी विड्थ बढ़ा रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉर्टिकल कैम्बियम भी एक्टिवेट होती है, क्योंकि बाहर की एपिडर्मस जो है, बाहरी लेयर जो है दरख्त की, पौधे की एपिडर्मस को बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ड्राइज ऑफ, इट स्प्लिट्स ऑफ, ड्राइज ऑफ एंड शेड ऑफ। एपिडर्मस की लेयर
ड्राई हो जाती है और शेड ऑफ हो जाती है। तो एट दिस पॉइंट कि बिफोर इट हैपेंस और प्लांट को एक नई एपिडर्मिस की ज़रूरत होगी, इससे पहले कि ऐसा हो उससे पहले ही एक्टिवेशन हो जाती है किसकी, कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट कैम्बियम की। ये कैम्बियम एक्टिवेट होती है और नए टिश्यूज़ बनाती है। ये नए टिश्यूज़ कहलाते हैं फैलोडर्म। ठीक है, फैलोडर्म इन टिश्यूज़ के अंदर डिपोजिशन हुई होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कि ट्यूबेरिन की, टेनिन की। ये जो डिपोजिशंस हैं ये हेल्प आउट करती हैं कि प्लांट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ लड़ सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वाटर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज डेवलप होते हैं आउटसाइड इन द आउटसाइड रीजन। आउटसाइड रीजन मतलब कॉर्टिकल रीजन, बाहर की तरफ यानी फैलोडर्म बनती है, और इन द इंटरनल रीजन नए टिश्यूज बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ का रिजल्ट है। ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है। ये टिश्यूज जो नए टिश्यूज बन रहे हैं इनका पर्पस क्या होता है, ये बन ही क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये कि हम इसको पढ़ रहे हैं सपोर्ट के प्लांट में, तो ये प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक ज़्यादा स्ट्रेंथ प्लांट को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ इनका पर्पस ये भी है कि ये प्लांट को के लिए नए टिश्यूज इसलिए भी बन रहे हैं ताकि ये प्लांट को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करें, किस चीज़ की, फूड एंड वाटर। सो दिस न्यू टिश्यूज हेल्प आउट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुराने टिश्यूज का क्या है, वो क्यों नहीं कर रहे, पहले से ही प्रेजेंट थे जाइलम एंड फ्लोएम। तो जैसे जैसे जाइलम एंड फ्लोएम एज्ड होते हैं, वक्त गुजरता है, प्लांट के अंदर लिग्निन एंड टैनिन की डिपोजिशन ज़्यादा होने लगती है। जैसे जैसे इनकी डिपोजिशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इंटरनल स्पेस एरिया है टिश्यूज़ का वो कम होने लगता है। ल्यूमिन जो है, जिसे हम इंटरनल एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वो ल्यूमिन डिक्रीज होने लगती है। जब आप इसको ऐसे समझें कि पाइपलाइन के अंदर साइड में डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, एरिया कम होता चला जाएगा, तो जब विड्थ कम हो गई तो ट्रांसपोर्ट के लिए जगह कम हो गई। जब जगह कम हो गई तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, अगर होगी भी तो बहुत मुश्किल से होगी या कम होगी। तो एज द टाइम गोज बाय डिपोजिशन इंक्रीजेस एंड द ल्यूमेन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम डिक्रीजेस। स्पेस कम हो गई, ट्रांसपोर्ट के लिए जगह नहीं है अब या कम है, इसलिए नए टिश्यूज़ का बनना ज़रूरी है। तो नए टिश्यूज़ डेवलप होते हैं जाइलम के और फ्लोएम के, और ये नए टिश्यूज़ जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर की और फूड की, इन्हें हम कहते हैं सैपवुड। एंड दोज ओल्डर टिश्यूज़ which have only the function of now support, यानी अब ये सिर्फ सपोर्ट के काम आ रहे हैं, नॉट इन द ट्रांसपोर्ट, इन्हें हम कहते हैं हार्डवुड। सो द ओल्डर प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ वुड, हार्डवुड एंड सैपवुड। सैपवुड इज लाइटर इन द कलर एज it has lesser depositions, while hardwood is darker in color. That is and the reason behind this is they have a lot of depositions of lignin in that. इसीलिए जब आप कभी लकड़ी खरीदें या लकड़ी के आप बने हुए वुड का फर्नीचर अगर आप देखें तो आपको उसमें पैटर्न्स नज़र आते हैं। ये पैटर्न्स डार्क एंड लाइट शेड्स नज़र आ रहे होते हैं। ये इसी वजह से होते हैं कि दो डिफरेंट टाइप की वुड्स उनमें प्रेजेंट होती हैं। Here comes an other term, annual summer wood, or you can say पहले आप इसको लें ऐसे कि ये दो तरीके के रिंग्स बनते हैं। साल में 2 बार रिंग्स बनते हैं, किसके, वेस्कुलर कैम्बियम के इन द स्टेम। साल में 2 बार बनते हैं, तो 2 तरीके के आपको रिंग्स मिलेंगे, 2 बार आपको रिंग्स मिलेंगे। कौन से रिंग्स, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में हो रही है ना, पूरी की पूरी रिंग बन रहा है इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको रिंग्स कह रहे हैं। तो एनुअल रिंग्स बनते हैं, 2 तरीके की वुड बनती हैं, एक को हम कहते हैं समर और एक को हम कहते हैं विंटर वुड। समर वुड और विंटर वुड, या फिर इसको आप स्प्रिंग वुड भी कहते हैं और इसको आप ऑटम वुड भी कहते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ समर में होगी तो जो रिंग बनेगा उसे हम कह रहे हैं स्प्रिंग वुड या समर वुड, और विंटर में होने वाले को, विंटर में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो विंटर रिंग या ऑटम रिंग। 2 बार रिंग बने, 2 बार रिंग्स को मिला के हम कहते हैं कि ये एक एनुअल रिंग बनता है प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से जो एक एनुअल रिंग बना है, तो जितने भी रिंग्स आपको स्टेम में नज़र आएंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, इट हेल्प्स यू डिटरमाइंस द एज ऑफ द प्लांट, राइट।
जितने रिंग्स होंगे आप उससे प्लांट की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्री इतना पुराना है। दिस इज हाउ आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द एज ऑफ द प्लांट। आप अक्सर सुनते हैं ना, ये ट्री बहुत पुराना है, इतने साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, न्यूज़ में आता है या आप आर्काइव्स में पढ़ते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट एज ऑफ द प्लांट। एक लिटिल बिट इन्फो कि आप ये समझ रहे हैं बच्चे या ये सोचते हैं कि किस तरीके से, क्या पूरा दरख्त ही काट के एज आइडेंटिफाई कर ली जाती है? पूरा दरख्त काट के एज आइडेंटिफाई नहीं की जाती। स्टेम के टीएस को पूरा स्टेम ही काट दिया तो इतने पुराने दरख्त की एज फिर क्या फ़ायदा, आपने तो पूरा दरख्त ही गिरा दिया। तो ये बहुत बचकाना सी बात है या ये सोच है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बताई जा रही है कि प्लांट की एज आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा टीएस काटने की ज़रूरत नहीं होती। एक बोरर टाइप डिवाइस आती है, बोरर यानी होल करने वाली डिवाइस आती है, जिससे स्टेम को बोर किया जाता है सिर्फ उसके सेंट्रल पार्ट तक, यानी डायामीटर में के हाफ डायामीटर तक, रेडियस तक। तो रेडियस तक आप उसे बोर करते हैं और निकालते हैं एक सर्कुलर वुड, उस पे ऊपर रिंग्स बने हुए आ जाते हैं। तो जितने भी रिंग्स होंगे आप उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे प्लांट की एज। दिस इज हाउ एज ऑफ द प्लांट इज बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर हम इसको समराइज करें, हमने टिश्यूज़ पढ़ लिए, सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ ली प्लांट के अंदर, इसका फ़ायदा क्या है? हम सपोर्ट के तनाजुर में भी अगर देखें तो पहली बात तो है कि नए टिश्यूज़ बन रहे हैं। नए टिश्यूज़ क्यों हेल्प आउट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, राइट? प्लांट को मौसम की सख्ती से बचाने के लिए इनके पास लिग्निन की डिपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो प्लांट को अच्छी सपोर्ट मिलती है, अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। दो बात। तीसरी बात ये कि प्लांट जैसे जैसे हाइट में बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको अपना डायमीटर बढ़ाने की भी ज़रूरत है। एक ये आप ऐसा समझ लें कि एक लंबे और पतले दरख्त का मौसम को झेलना और हवा की रफ्तार को और तेज़ी को झेलना मुश्किल है बनस्बत एक वाइडर ट्री को। तो ये विड्थ बढ़ाने में काम आते हैं दरख्त के। तो दिस इज़ वाई all the tissues and all the secondary growth helps out in the support of the plant. Hope you students have understood this lecture, and we will continue this chapter in our next video lecture. So see you students later.